Okay, dear student, today in this lecture we are going to start new sum. Shreyas requested you to prepare trading account, profit and loss account for the year ended on 31st March 2018 and balance sheet as on that date. So this is trial balance, and first I will explain you the effect of all the accounts which is given in trial balance. As I told you in earlier lecture, all the accounts which is given in trial balance, it will have single effect. Opening stock, it will go to the trading account debit side. Debtors, balance sheet, asset side. Return inward means sales return. This is sales return, so this will less from the sales, so it will come trading debit. Rent, rates and insurance, so this is the indirect expenses. So it will come profit and loss account debit side. Productive wages is there, so this is expenses directly related with the production, so this is direct expenses and it will come trading account debit side. Discount is the indirect expenses, so this is given to the debit side of trial balance, means this is discount allowed, so this is the loss to the firm, so this is the indirect loss, so it will come to the profit and loss account debit side. Interest is also indirect expenses, it will come profit and loss account debit side. Loss by fire, indirect loss, so it will also come profit and loss account debit side. Salaries, again this is indirect expenses, so it will come profit and loss account debit side. Purchases, this will come trading account, because purchase is related with the production, so this will come trading account debit side. Drawing, in earlier lecture I told you drawing is always less from capital, so this will go to the balance sheet liability side and this will less to the capital. Carries outward, so this is indirect expenses, profit and loss account debit side. Loose tools is the asset, so asset means it will go to the balance sheet asset side. Plant and machinery will also go to the balance sheet asset side. Cash in hand, this is also asset, balance sheet asset side. Cash at bank, again asset, balance sheet asset side. Now credit side, the first item is the creditors is the liability, so it will go to the balance sheet liability side. Return outward means purchase return, so this will less to purchase, so this will go to the trading account debit side and this will less to the purchase. Sales is the direct income, so this will go to the trading account credit side. Discount, it is given to the credit side to the trial balance, means this is discount received,
So this is indirect income, so it will go to the profit and loss account credit side. Capital is the liability, so this will go to the balance sheet liability side. Outstanding interest, outstanding is the liability. Outstanding is the liability, so this will also go to the balance sheet liability side. And loan is also liability, so this will also go to the balance sheet liability side. So now the effect of account which is given in trial balance is clear to everyone, I think. Now we have to proceed to the balance sheet. As I told you, in final account, clearly the concept is that the accounts given to the trial balance will have single effect, and if there is a details in adjustment, the effects of adjustment will have two effect. So this is the adjustment. Stock as on 31st March 2018 amounted to rupees 48,500. So here the stock it is given on 31st March. 31st stock on 31st March means this is closing stock. So it will have two effect. The first effect, it will go to the trading account credit side, and the second effect, it will go to balance sheet asset side. Remember one thing, in final account problem, the first adjustment is quite common, that is the closing stock. In every problem you will get first adjustment, that is the closing stock adjustment. Then the second adjustment is there, charge depreciation on loose tools at 10%. So depreciation, I told you, this is the loss to firm and it is calculated on the fixed asset. So these loose tools, we have to calculate 10% on that, and the depreciation, it will less from the book value of loose tools. So the first effect, it will go to the balance sheet asset side, and the second effect will go to the profit and loss account debit side for depreciation. And here for plant and machinery, the concept will be same again, because this is depreciation. So again we have to calculate 50% depreciation on book value of plant and machinery. So the first effect will go to the balance sheet asset side, and then the second effect of depreciation, it will go to the profit and loss account debit side. Then third number adjustment is there. Prepaid insurance amounted to rupees 500. So this prepaid insurance is there. Prepaid insurance, it will get less from the insurance, and the second effect, it will go to the balance sheet asset side. So it will have two effect. Prepaid insurance will have two effect. First effect, it will go to the profit and loss account debit side, and the second effect, balance sheet asset side. And for outstanding rent, there will be two effects. First effect will be profit and loss account debit side, and the second effect, outstanding is liability, and therefore it will go to the balance sheet liability side. Here one thing I would like to tell you, if there is prepaid means paid in advance. So whenever there is the expenses which is paid in advance, we have to less that expenses paid in advance to the respective expenses. So prepaid insurance will get less from the insurance to the debit side of profit and loss account, and then after that the second effect of prepaid insurance, it will go to the balance sheet asset side. And in case of outstanding means expenses due but not paid, that is called outstanding. So outstanding is remain liability. So outstanding rent will be added to the respective rent which is given to the trial balance.
and then afterward the second effect will go to the balance sheet liability side, this 400. Then the adjustment number 4th, charge interest on capital at 5%. So interest on capital we have to calculate on capital 5% interest. So this interest on capital will be added to the capital, and the second effect will go to the profit and loss account debit side. So interest on capital will also have two effects. First effect will go to the balance sheet liability side, and the second effect will go to the profit and loss account debit side. And interest on drawing, this interest on drawing, it will get less from capital, so the first effect will go to the balance sheet liability side, and interest on drawing is the income to the firm, so the second effect will go to the profit and loss account credit side. So corresponding effect I told you regarding the charge of interest on capital as well as charge of interest on drawing. And then after that there is fifth adjustment, outstanding salary. Outstanding is the liability, so this outstanding salary will get added to the salary which is given in trading trial balance. So it will have two effects. The first effect will go to the profit and loss account debit side, and the second effect, outstanding is the liability, so the second effect will go to the balance sheet liability side. Now the total adjustment, the effect of adjustment I explain you. Now the same problem I am going to solve. You have to put proper care on that. So if you have any little bit doubt in the theoretical explanation, it will get clear when the practical, when you observe the things, then the confusion may be clear. So every one of you put proper care. As I told you in the earlier lecture, in final account, finally we start to solve the problem by the adjustment itself. First we solve all the adjustment, and then remaining account which is left in trial balance, then after that we will make the effect of that. So now we are going to start to solve the problem by the adjustment. The first adjustment is there, stock on 31st March 2018 amounted to rupees 48,500. So it will have two effects. The first effect we have to put to the trading account credit side. This is quite common adjustment in every final account, so we must not forget the effect of closing stock. Always come to the credit side of trading account. At the last we have to write here by closing stock. And amount directly we have to write the outer column 48,500. And the second effect, it will go to the balance sheet asset side. Balance sheet asset side, and we have to write at very much below to the column closing stock. That is 48,500 outer column. Now the second adjustment is there, charge depreciation on loose tools at 10%. We all are knowing loose tool is the asset, so the loose tools we have to write to the asset side of balance sheet. And in a real lecture I told you we all fixed asset we have to write at the top
to the asset side. So we have to start here loose tools, and loose tools amount, it is the book value of loose tools is given to the trial balance, that is 17,500. There is adjustment, therefore we have to write the book value to the inner column 17,500. and there is a depreciation हमेशा उसके बुक वैल्यू में से हमको लेस करना होता है. इसके लिए यहाँ से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे लूज टूल से. लेस डेप्रिसिएशन 10%. 17,500 का 10% निकालेंगे तो 1750 आएगा. एक ज़ीरो गायब कर देंगे तो 10% मिल जाएगा हमको. तो ये आ जाएगा 1750. अब इसको माइनस कर देंगे. माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे. अमाउंट आएगा 15,750. आपको खुद भी कैलकुलेशन करना है. मेरे कैलकुलेशन पे इतना ज़्यादा वेस्ट मत हो जाओ. आपको कैलकुलेशन करके देखना है. प्लस माइनस आपको खुद भी करना है. 15,750 आया. उसके बाद में ये 1750 जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है 1750, इसका सेकेंड इफेक्ट भी हमको मारना है. इसका सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया ये लॉस होता है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा. लेकिन एक और डेप्रिसिएशन है, वो भी कर लेते हैं. बाद में दोनों डेप्रिसिएशन का साथ में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे. दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है. तो यहीं पे उसका भी इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो 14,000 है. इनर कॉलम में 14,000 लिखेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे. डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 15% है. अब ये 15% हम लोग 14,000 पे कैलकुलेट करेंगे. तो 14,000 का 15% जो है वो 2,100 आएगा. कैसे आएगा वो भी बता देता हूँ, आपको कैलकुलेशन करके देखना है. 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2,100 आएगा. और ये 2,100 इसके बुक वैल्यू में से माइनस करना है. और रिमेनिंग जो बैलेंस आएगा वो आउटर कॉलम में लिखना है 11,900. और अब ये दोनों डेप्रिसिएशन जो लूज टूल्स के ऊपर हमने कैलकुलेट किया था और जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कैलकुलेट किया है, ये दोनों भी हम लोग कहाँ पे इसका इफेक्ट मारेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमको लिखना है. यहाँ पे एक लाइन बैलेंस के लिए छोड़ देंगे. और यहाँ पे हमको लिखना है टू डेप्रिसिएशन. नीचे लिखना है लूज टूल्स. लूज टूल्स का अमाउंट लिखना है 1750 इनर कॉलम में. और उसके नीचे प्लांट एंड मशीनरी लिखना है. अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 2,100. और इन दोनों को प्लस करना है. तो प्लस करेंगे तो आएगा 3850. आउटर कॉलम में लिख देंगे 3850.
और अब तीसरा एडजस्टमेंट जो है, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹500। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस में से लेस होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया है आपको, प्रीपेड मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तो जो पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस है वो रिलेटेड एक्सपेंसेस में से लेस करना है। तो अभी हमको ट्रायल बैलेंस में ढूंढना है पहले इंश्योरेंस कितना दिया है। ट्रायल बैलेंस में आप सभी लोग देखेंगे डेबिट साइड में वहाँ पे एक आइटम दिया है रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। पहले उसको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, उसका अमाउंट है 2250। इनर कॉलम में लिखना है 2250। और फिर ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है इसको लेस करना है, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। ये प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, 500। तो ये 500 इसमें से लेस कर देना है। लेस करके अभी भी इनर कॉलम में ही रखना है 5071 1750 आ गया। और ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो 500 आया है इसका हमको सेकेंड इफेक्ट मारना है बैलेंस शीट के एसेट में। उसके बाद में हमको आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। ये ध्यान देना है, मैंने अभी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग बताया है। उसका मीनिंग होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो वो हमेशा इसमें ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 400। ये 400 इसमें प्लस कर देंगे, आउटर में आएगा 2150। अब ये प्रीपेड जो है 500 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में जाता है, क्योंकि प्रीपेड एसेट होता है। और ये जो आउटस्टैंडिंग 400 है ये लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है। तो अब ये दोनों इफेक्ट हम लोग 500 का और 400 का इफेक्ट मार देंगे, सेकेंड इफेक्ट। तो ये प्रीपेड का पहले हम लोग इफेक्ट मारेंगे बैलेंस शीट के एसेट में। ये बैलेंस शीट आपके सामने है, एसेट साइड में सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा 500 और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ये लाइबिलिटी में जाएगा, तो इसको लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में 650। एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ, बता देता हूँ, आप इसका टेंशन मत लो कि सर ये बीच में नहीं लिख रहा है, लास्ट में लिख रहा है। तो आप प्लेस के बारे में ज़्यादा कुछ अभी टेंशन मत ले लो। आपका इफेक्ट राइट साइड में होना चाहिए, आप कहीं भी लिखो चलेगा। लेकिन मोस्टली अगर हम उसके कंसेप्ट से, ये एक्चुअली क्यों लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये करंट एसेट में आता है और अभी बीच में भी करंट एसेट कुछ आएगा जो कि एडजस्टमेंट वगैरह में दिया रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और सर ने ये एडजस्टमेंट है इसके लिए एक साइड में सबसे नीचे लिखा है। और ये आउटस्टैंडिंग, ये करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी के लिए भी सर ने एकदम लास्ट में लिखा है। लेकिन आप अगर टेंशन मत लो, एग्जाम में आप कहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसेट वाला आइटम आपने लाइबिलिटी में लिख दिया, लाइबिलिटी वाला आइटम आपने एसेट में लिख दिया, तो वो रॉन्ग होगा। लेकिन ये प्लेस के लिए आप अवेयर मत करो, आप कहीं भी लिख सकते हो। उसके बाद में चौथा जो एडजस्टमेंट है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं, तो कैपिटल लाइबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में सबसे ऊपर हम लोग कैपिटल लिखते हैं
ये प्लेस फिक्स होता है, ये ध्यान रखना है आपको। कैपिटल हमेशा स्टार्ट में ही लिखो, सबसे पहला पोजीशन कैपिटल का रहता है लायबिलिटी में। तो ये कैपिटल आप ट्रायल बैलेंस में देख रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल दिया हुआ है 75,000, आपको इनर में लिखना है। और अब इसमें अगर नेट प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा, यहाँ पे हम लोग लिख के रखते हैं, जो भी होगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी होगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। और फिर उसके इसके लिए एक दो लाइन छोड़ देते हैं और फिर नीचे लिखते हैं ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट निकाला है आपको परसेंटेज दिया है 5%, वो 5% 75,000 का निकालना है। तो ये आएगा 3750, यहाँ पे 3750 आपको लिख देना है। और याद रखो इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके तुरंत बाद आपको दिया है ड्राइंग के ऊपर 7% है। जैसा कि मैंने बताया कैपिटल में से ड्राइंग लेस होता है, तो यहाँ पे पहले आप लिख दीजिए ड्राइंग लेस ड्राइंग। ड्राइंग आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 2500, ये 2500 यहाँ पे लिख दिया। और फिर उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 2500 दिया है, इसके ऊपर 7% आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो 88 आएगा। तो ये 88 रुपीज़ इसमें से क्या होगा, लेस होगा। ये बाद में जब हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा तब उसके बाद हम लोग इसको ऐड और लेस कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दो बातें। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया है 3750, इसका एक इफेक्ट और मारना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैलकुलेट किया है 7% 2500 के ऊपर जो आया है 88 रुपीज़, इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। तो अभी हम इसका सेकेंड इफेक्ट मार लेते हैं दोनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी आपके स्क्रीन पे है। तो ये पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 3750, डायरेक्ट आउटर में लिख दिया। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट। ये एक दो लाइन हमको बैलेंसिंग फिगर के लिए छोड़ के रखना है, अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कितना आया था 88 रुपीज़। तो ये दो इफेक्ट हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इधर डेबिट में आया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये इधर क्रेडिट में आया। ये आपको इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार भी बना देता हूँ, जिसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये नॉर्मली ये दोनों में से एक एडजस्टमेंट आपको एग्ज़ाम में भी रहता है, इसके लिए इस पे दोनों पे ध्यान देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी। अब उसके बाद में हमारा नंबर आता है पांचवा एडजस्टमेंट का, आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम सबको मालूम है सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी, और सैलरी का अमाउंट हम लोग ढूंढेंगे ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी का अमाउंट दिया है 1850, वो इनर कॉलम में लिखेंगे। और फिर उसके बाद में इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, हमेशा आउटस्टैंडिंग ऐड ही करना है, ये बात नहीं भूलना है हमको। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 650, ये 650 इसमें ऐड करना है। 650 ऐड करेंगे तो 2500 आएगा। और ये आउटस्टैंडिंग जो 650 दिया है आउटस्टैंडिंग, ये सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा।
क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो होता है वो लायबिलिटी होता है, याद रखो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है। इसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट ये 650 का बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है वहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 650। ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए। और अब हम ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट बच गया है सबका सिंगल इफेक्ट मारना है हमको। नाउ वी डिड ऑल द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट and we have to proceed to the trial balance, and now the account which is left we have to make the single effect now. But while making the effect from the trial balance, one thing we must ensure that any effect should not be repeated. So by the way, if we already made the effect of adjustment, for that we have to be more careful. So we must not make the repeated effect of that. Now we have to start from the first account which is given in trial balance, that is the opening stock. So opening stock we always put to the debit to the trading account. First line we have to write opening stock. Opening stock 14,400, direct we have to now write to the outer column. Then debtors is the asset, so we have to make the effect to the balance sheet asset side. Debtors is the current asset, so we have to put the effect to the middle of asset. Debtors amount is 30,000, so direct we have to put to the outer column. And then return inward is there. Return inward is the sales return, so return inward we have to less from the sale, so we have to put to the credit side by sales. First we have to write the sale, पहले हमको sales लिखना है। सेल्स का अमाउंट 20,000 है, तो इनर कॉलम में 20,000 लिखना है। और फिर इसमें से हमको 1650 लेस करना है, लेस सेल्स रिटर्न। ये बात याद रखो, सेल्स रिटर्न को हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, ये बात ध्यान देना है। 1650 हमको माइनस करना है। 1650 20,000 में से लेस करेंगे, आउटर कॉलम में आएगा 18,350। कैलकुलेशन पे आपको भी ध्यान देना है, प्रैक्टिकली आपको भी कैलकुलेशन करके लेना है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, वो हो गया है। प्रोडक्टिव वेजेस इज देयर। प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। 2-3 लाइन डेबिट साइड में 2-3 लाइन छोड़ के लिखना है टू प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस 2525, डायरेक्ट आउटर में लिखना है 2525। उसके बाद में डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। डिस्काउंट दिया है 390, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 390 लिखेंगे। इंटरेस्ट भी इधर ही आएगा, इधर ही मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट 475। उसके बाद में लॉस बाय फायर भी इधर ही आएगा, टू लॉस बाय फायर 1650। सैलरीज हो गया है, हमने इफेक्ट ऑलरेडी मारा है यहाँ पे सैलरी का, ये तो हमको रिपीट फिर से नहीं मारना है। परचेस इज देयर, परचेसेस, तो परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखना है परचेसेस
परचेसेस जैसे ही लिखेंगे देखेंगे हम लोग परचेस रिटर्न दिया है तो उसको उसमें से माइनस कर देंगे। परचेसेस 24,350 इनर में लिखना है। परचेस रिटर्न भी दिया है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, वो अभी यहीं पे लिख देंगे लेस परचेस रिटर्न। देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दूसरा आइटम क्रेडिटर के नीचे दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड 750, वही परचेस रिटर्न है तो 750 यहाँ से माइनस करेंगे और 750 माइनस करके तो इसका जो बैलेंस आएगा वो 23,600 आउटर में लिखेंगे। ये हो गया। उसके बाद में ड्राइंग का इफेक्ट हमने ऑलरेडी मारा हुआ है। कैरियर्स आउटवर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। टू कैरियर्स आउटवर्ड 1275। लूज टूल्स का भी इफेक्ट हमने मार दिया है। प्लांट एंड मशीनरी का भी इफेक्ट हमने किया हुआ है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों भी एसेट है तो दोनों भी एसेट में लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट में। कैश इन हैंड कितना अमाउंट है 1250 और कैश एट बैंक कितना अमाउंट है 7,500। अब उसके बाद में हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिटर्स का इफेक्ट हमने ऑलरेडी नहीं मारा हुआ है तो इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। क्रेडिटर्स 19,300 डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड हमने किया हुआ है, ये परचेस रिटर्न परचेस में से लेस किया हुआ है। सेल्स भी हुआ है। डिस्काउंट का इफेक्ट मारना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। बाय डिस्काउंट 365। उसके बाद में कैपिटल का इफेक्ट भी हमने मारा हुआ है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में लिखना है। क्रेडिटर्स के ऊपर ये क्रेडिटर्स के नीचे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 650। उसके बाद में लोन जो है लायबिलिटी है तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लोन लिखना है। लोन 7,500 डायरेक्ट आउटर में। और ये अभी हमारा पूरा इफेक्ट कंप्लीट हुआ है ट्रायल बैलेंस का। नाउ वी हैव टू टैली द ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल हाईएस्ट टोटल है वो आएगा 66,850 66,850 दोनों साइड में लिखेंगे। और फिर डेबिट साइड का ये जो टोटल है वो 66,850 में से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 26,325। डेबिट साइड में बैलेंस आया तो इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आया डेबिट में जो बैलेंस आया वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इतना 26,325। और अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
आपका क्रेडिट साइड का टोटल हाईएस्ट है, वो टोटल आएगा 26,778। वही टोटल दोनों साइड में लिखेंगे 26,778। और डेबिट साइड का टोटल अब इसमें से माइनस करेंगे तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा 10,738। तो ये डेबिट साइड का जो बैलेंस है इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है हम लोग इसको कैपिटल में ऐड करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। और अब ये नेट प्रॉफिट में हम लोग इसको ऐड करेंगे 10,738। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, इसमें ऐड कर देंगे 10,738। और ये तीन आइटम 75,000 और 10,738 और 3,750 ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 89,488। और इसमें से ये 2,500 लेस करेंगे तो आएगा 86,988। और 86,988 में 88 माइनस करेंगे तो आउटर में आएगा 86,900। और एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 650 नहीं है, ये 400 है। एडजस्टमेंट में 400 दिया है तो यहाँ पे ये 650 नहीं है, ये 400 है। और अब इसको टैली करेंगे, टैली टोटल दोनों साइड सेम आना चाहिए बैलेंस शीट का। तो ये आ रहा है 1,15,400। Okay, in next lecture we will solve some new sum.